شک نہیں ہے کہ الہاد کے ساتھ ہمارا اصولی مسئلہ یہی ہے کہ وہ خالق کا انکار کرتے ہیں، ہم خالق کا اقرار کرتے ہیں. جب تک یہ مسئلہ کلیئر نہیں ہوگا دوسرے مسئلے کلیئر نہیں ہوں گے، یہ بات ٹھیک ہے. مگر جب دشمن آپ پر آ کر حملے کر رہا ہو اس وقت آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ میرے منہ پہ تھپڑ مارے گا تو تب میں لڑوں گا، ٹانگوں پہ مار لے، پیٹ میں مار لے. اور یہ بڑے بڑے اسکالرز یہ بات ابھی کر رہے ہیں. میں نے پچھلے دنوں ایک بندے کی بات سنی ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی میں نے بات سنی. حالانکہ میں کتنی دفعہ میں پرسنلی ان کے ساتھ ملا، میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کی انجینئر صاحب کے ساتھ. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے سوچ اختلاف صحیح، مگر آپ کی آواز اب بڑی دور تک جا رہی ہے، اس چیز کو کریں کہ الہاد کے اوپر ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن کے طور پر لیں. وہ کہتے ہیں میں نے جتنا کام کرنا تھا کر لیا، میں نے مقدمہ جو ہے نا ہائی لائٹ کر دی. پر ٹھیک ہے پھر آپ نے اگر کر دیا تو اس کو چیلنج کے طور پر لے ہی نہیں رہے مشن کے طور پر. میں سمپل، میرے نزدیک سمپل فارمولا ہے، کیونکہ میں ایتھیزم کے بارڈر سے ہو کے آیا ہوں. ٹھیک ہے، میں اپنی ایک عمر کے اندر اپنے زمانے میں ایتھیزم کے بارڈر پہ تھا. ٹھیک ہے، تو میں ان کی نفسیات کو بڑے اچھے سے سمجھتا ہوں. میرے خیال سے میں بڑے بہتر طریقے سے سمجھتا ہوں، کم از کم اس لیول تک نفسیات کے طور پہ کیا ہو سکتا ہے میں اچھے سمجھتا ہوں. میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جب تک یہ اپنے کانسیپٹ کلیئر نہیں کریں گے نا کچھ بھی نہیں ہوگا. اسلام کے بارے میں بھی اور دنیا کے بارے میں بھی کانسیپٹ کلیئر کرنے سے مراد کیا ہے. ان کو سب سے پہلے اس چیز کو سمجھ لینا ہوگا کہ اسلام مسلمان کا نام نہیں ہے. اگر مسلمان غلط کر رہے ہیں ڈزنٹ مین کہ اسلام غلط ہے. صحیح ہے، صحیح بات ہے. ہمارے ڈیز کے اندر خاص طور پہ بنو امیہ کے زمانے کے اندر اس نے عروج پکڑا تھا. تو اس زمانے کے اندر اس طرح کے اعتراضات، تو امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیز کہی تھی، ہم اللہ کی صفات کے قائل ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ہم ان کی کیفیت مجہول ہے، ہم نہیں جانتے، ان کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، ان کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے. یہ امام مالک بن انس کا فتویٰ موجود ہے بیان تلبیس الجہمیہ کے اندر، ابن تیمیہ نے نقل کیا. اسی طریقے سے کتاب الاسماء والصفات کے اندر امام بہقی نے بہت سی حدیثیں لے کے آئی ہیں جس کے اندر ان چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اس کو قیاس مت کرو. وہ کس طرح مطلب آیات متشابہات میں سے ہیں، بالکل متشابہات میں سے ہے. اسی لیے تو دیکھ لیں کہ صرف جو بھی متشابہات میں سے ہے اس پر ایمان لانے کو کہا گیا ہے. وہ آپ کی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، اس کا ادراک نہیں کر سکتی. اگر ملحد یہ کہے کہ دیکھو جی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے یہ، اگر اس کو آپ بلائنڈ فیتھ کہتے ہیں تو بعض چیزوں کے بارے میں سوالات آپ کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ. یعنی بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، وہ کیسے ٹریگر ہوا، یہ بھی بلائنڈ فیتھ ہی ہے اور کیا ہے. خود اس کو لکھا ہے گرینڈ ڈیزائن کے اندر اسٹیفن ہاکنگ نے کہ بگ بینگ سے پہلے یہ پوچھنا کیا تھا، اٹس میننگ لیس. یہ فضول بات ہے، چپ کر جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی انسائنٹیفک چیز نہیں ہے. انسانی عقل محدود ہے، یہ حقیقت ہے ایک بہت بڑی. نہیں یہ بات تو صحیح ہے. تو وہ اصل میں ملحد جو ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ مطلب ان کو ہر چیز عقل کی بیس پہ ہر جگہ تولتے ہیں اور ہر چیز میں وہ سوال کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہی ان کا زیادہ سوال کرنا ہے ان کو زیادہ گمراہ کر دیا ہے. یہ مطلب ایک ایمان سے مرتد ہو گئے. ہاں، ان کا سوال کرنا ہی سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ہر چیز میں وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کیونکہ اب ہر انسان، ہر ایک سوال کا انسان جب جواب ڈھونڈنے لگ جائے گا تو ضرور وہ گمراہ ہو جائے گا. کیونکہ کچھ سوالوں کے جواب ہوتے ہیں کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے. اور یا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابلیس نے بھی کہا تھا کہ انا خیر منہ، کہ میں تم سے بہتر ہوں. حالانکہ اس کو آگ اور مٹی کی بات تو ٹھیک تھی کہ میں آگ اوپر جاتی مٹی زمین میں پڑی تھی، لیکن اس نے جو مسئلہ اخذ کیا تھا، یعنی جو پورا معنی اخذ کر لیا تھا، وہیں سے وہ گمراہ ہوا. اور یہی ملحدین کا بھی طریقہ ہے کہ وہ ہر چیز کا معنی اخذ دوسرا کر لیتے ہیں. ہر سوال کریں گے اور اس سوال میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو آپ نے مثال دی بڑی پیاری دی ہے. آواز حق کے اوپر ایک پروگرام، اسی چینل کے اوپر ایک پروگرام پڑا ہوا ہے، فلسفہ الہاد اور عقل. اچھا ٹھیک ہے، اس کے اندر نا آپ پروگرام دیکھیں، اس کے سٹارٹ کے اندر میں نے اس طرح کی کچھ چیزیں پیش کی ہیں. اصل مسئلہ معقولات اور منقولات کا ہے. ٹھیک ہے، جس کی مثال آپ نے دی ہے. اسلام کے نزدیک لاجک اور ریزن یہ ہمیشہ ٹھیک ہو، اس کی کوئی ویریفیکیشن نہیں. اور یہ بھی سائنس کہتی ہے کہ عقل کے نکالے ہوئے نتیجے ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتے، یہ ظنیات پر ہوتے ہیں. اس میں گیسز ہیں، ازمپشنز ہیں، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا نہ ہو. مگر وہی کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں منقولات. اللہ تعالیٰ نے جب شیطان، یہ جو واقعہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت جو ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو عقل کے اوپر ترجیح ہے. وہ سمیعیات، جیسے فلسفی کی زبان کے اندر ابن تیمیہ نے جو درء تعارض العقل و نقل پوری کتاب لکھی ہے، اسی طریقے سے امام رازی جو ہیں، فخر الدین رازی، انہوں نے کتاب لکھی نہایت العقول. امام فخر الدین رازی نے نہایت العقول الی درایت الاصول، اصول نکالنے کے اندر. اسی طریقے سے امام غزالی نے المستصفیٰ لکھی ہے من علم الاصول.
इस तरह की कुछ किताबें आप पढ़ेंगे तो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगा कि असल इशू इल्हाद का ये है कि ये अकल को तरजीह देते हैं, जबकि शरीयत ये कहती है कि अकल महदूद है, अल्लाह उससे ज्यादा बेहतर जानता है। इसीलिए मौदूदी साहब ने एक किताब जो लिखी है मुख्तलिफ तनकीहात, उस तनकीहात के अंदर 2 मजमून है, अकलियत का फरेब, वो दोनों मजमून पढ़ने वाले हैं, अकलियत का फरेब तनकीहात में। कि अकलियत जो है कि हम जो है ना वो रैशनलिज्म की बुनियाद के ऊपर चलेंगे, तो इसका एक्सट्रीम रवैया होता है जो ये निकलता है। आपने जो शैतान की बात की ना, उससे एक नुक्ता आपको बड़े मजे का, आपने प्यारी बात की, उसको मैं उठाना चाहता हूँ। वो ये है, शैतान ने जो दलील अल्लाह को दी थी वो थी बड़ी लॉजिकल जाहिरी तौर पर, मगर अल्लाह ने उसको क्यों रजीम कहा या उसको दूर किया कि उसने अपनी अकल को इस्तेमाल करके लॉजिक और रीजन को तरजीह दी अल्लाह के हुक्म के ऊपर। असल चैलेंज ये चैलेंज है, एकदम सही बात बोले आप, बिल्कुल। तो फलसफा इल्हाद और अकल का जो प्रोग्राम है उसके अंदर मैंने खोलकर बयान किया है कि इल्हाद का दरवाजा खुलता वहां से है जब आप माकुलात को मनकुलात के ऊपर तरजीह देते हो। इसमें कोई शक नहीं है कि शरीयत को समझने के लिए अकल की जरूरत है। अगर आपके पास अकल ना हो, शरीयत का कलम उठा लिया, ठीक है, सही बात। मगर आप ये भी साथ तस्लीम करोगे कि अल्लाह आपसे बेहतर जानता है, और जो शरीयत आपको दी गई है आप अपनी अकल के ऊपर उसको जरूरी नहीं है कि परखो। अच्छा, ये जो अकल का डेफिनेशन भी करते हैं, ये भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि हर एथिस्ट जिसके पास भी आप जाएंगे वो अलग अलग डेफिनेशन करने लग जाते हैं। तो उनकी बात में खुद तजाद है। ये उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब आप एक एथिस्ट, क्योंकि इनका भी एक अब मजहब बनता हुआ चला जा रहा है अब, तो इनका भी तरीके से जब आप अकल की बेस पर हर चीज को तोलते हैं, तो फिर आप अकल की डेफिनेशन ऐसी करें जो तमाम मुल्हिदों के नजदीक सेम हो। ये क्या है कि आप अलग करें, आप अलग करें, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आती है। आप अकल की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इब्ने तैमिया ने किताब रद्द अलल मंतकीयीन जो लिखी है, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बकायदा अरिस्टोटलियन लॉजिक को डिबंक किया है। उस बंदे ने 2 बुनियादों के ऊपर, एक नंबर 1 डेफिनेशंस के ऊपर और नंबर 2 एनालॉजीज के ऊपर, इल्म मंतिक में। उसने ये कहा है कि आज तक मंतिक इस चीज पर मुत्तफिक, या लॉजिक या नॉलेज जिसको एपिस्टेमोलॉजी इल्म तारीफा, इस चीज पर मुत्तफिक नहीं हो सके कि नॉलेज असल में क्या है, छोड़े अकल क्या है, हकीकी इल्म है क्या। अच्छा, फिर उन्होंने किताबुर रद्द अलल मंतकीयीन के अंदर दलीलों के साथ पेश किया है कि बाज डेफिनेशंस जिसको आप डेफिनेशन कह रहे होते हो, दूसरे के नजदीक वो नामुकम्मल होती है, जिसको हद्दे ताम या हद्दे मुफीद कहते हैं, प्रोप्रिएट डेफिनेशन हर बंदा कर ही नहीं सकता। आप अकल, यानी आप ये समझें कि वो इल्म जिसको इंसान कहता है नॉलेज, वही मशकूक हो गया हुआ है। हाँ, वही मशकूक, सही बात है। आप इस इल्म की बुनियाद के ऊपर, और यही वजह दर उतारिद नकल के अंदर भी बात की, और इमाम गजाली ने जो तहाफुतुल फलासफा के अंदर बात की है, उन्होंने भी इन इश्यूज को जिक्र किया, इमाम गजाली ने तहाफुतुल फलासफा के अंदर, कि आप जब फलसफियों के पीछे चलते हैं या उनकी अकल को, और इसी तरह मुनकज़ मिनद दलाल के अंदर भी जिक्र किया उन्होंने, मुनकज़ मिनद दलाल में पूरा वाक़या उन्होंने जिक्र किया कि फलसफियों के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि इनको समझ ही नहीं आ रही होती कि ये किस हकीकत को मान रहे हैं और किस झूठ को रद्द कर रहे हैं। सही बात, अब तारीफ ही नहीं है। अच्छा, इल्म की इनके नजदीक डेफिनेशन है, इब्न तैमिया ने जिसका जिक्र किया है, वो कहते हैं इल्म, इनसे पूछें नॉलेज किसे कहते हैं, इल्म किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं जी हुसूल शै फी ज़हन, जब आप किसी चीज का नाम ले उसका जहन में आना। उसको क्या जहन में आना काफी है, या उस चीज की जितनी बिलोंगिंग्स हैं, जितनी उसकी डिटेल्स है, वो भी आना जरूरी है। बाज कहते हैं वो है बात, यानी मकसद कहने का ये है कि अगर इसी चीज के ऊपर मैं बोलूं तो हम बोलते चले जाएंगे कि अकल तो दूर की बात है कि जो मौजूदा इल्म आपके सामने मौजूद है वही मशकूक हो जाएगा। सही बात है। अच्छा, मैंने जो एक क्लिप बनाया था, 40 मिनट का गालबन प्रोग्राम है, वादे हक पे पड़ा हुआ है, जो दिखता है, मैंने पहले जिक्र किया, जो दिखता है वो बिकता है, मैं पीछे भी उसका जिक्र कर रहा था। ये जो वीडियो जो मैंने बनाई है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत सी चीजों पे साबित किया है कि क्वांटम लेवल पर जाकर क्या सच है क्या झूठ, फर्क खत्म हो जाता है। अकल दंग रह गई है क्वांटम फील्ड्स में, जब वो सफर करती है लोग परेशान हो गए हैं। अब आप जब क्वांटम लेवल पर जाते हैं, आप एक चीज को इधर देखते हैं, वो चीज एक ही वक्त के अंदर मल्टीपल जगह के ऊपर होती है, आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि वो किस जगह पर है। यानी हकीकत अफसाना हो जाती है। यानी मैंने उसमें एक आर्टिकल पेश किया साइंस से, जिसमें एक जो जर्नल लिखने वाले हैं साइंटिस्ट, जो आर्टिकल वो लिख रहे हैं, उनको उन्होंने कोट किया। वो कहते हैं कि क्वांटम फील्ड सेज गुड बाय टू रियलिटी। ये जुमला है बकायदा हेडलाइंस।
कि क्वांटम फील्ड और क्वांटम जो मैकेनिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, सेज गुड बाय टू रियलिटी। हकीकत को खैर बात कह दिया उसने, कहा तुम जिसको सच समझ सच है ही नहीं क्वांटम फिजिक्स के अंदर, धोखा। तो इसलिए जो दिखता है वही सच हो ये जरूरी नहीं है। सही बात है। तो इतनी सी बात है, इनकी सारी बुनियादें सारी की सारी गलत हैं। जब तक ये तस्लीम नहीं करेंगे उन बुनियादी सवालों को जो इंसान के जज्बात से, उसकी नफ्सियात से, उसके एहसासात से उठते हैं, ये उसको दबाते हैं। इंसान ये जानना चाहता है वो मर के किधर जाता है, ये उसको दबाते हैं, कहते हैं ये बाहर से निकला है, उसको दबाते हैं। जब वो दबाते हैं वो डिप्रेस होता है। मैं सिंपल, मेरे नजदीक सिंपल फार्मूला है, क्योंकि मैं एथिज्म के बॉर्डर से होके आया हूं, ठीक है। मैं अपनी एक उम्र के अंदर, अपने जमाने में मैं एथिज्म के बॉर्डर पे था, अच्छा, ठीक है। तो मैं इनकी नफ्सियात को बड़े अच्छे से समझता हूँ। मेरे ख्याल से मैं बड़े बेहतर तरीके से समझता हूँ, कम से कम इस लेवल तक कि इनकी नफ्सियात के तौर पे क्या हो सकता है मैं अच्छे समझ। मैं एक बात आपके सामने रखता हूँ, जब तक ये अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे ना, कुछ भी नहीं होगा, इस्लाम के बारे में भी और दुनिया के बारे में भी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से मुराद क्या है, इनको सबसे पहले इस चीज को समझ लेना होगा कि इस्लाम मुसलमान का नाम नहीं है। अगर मुसलमान गलत कर रहे हैं डजंट मीन कि इस्लाम गलत है। सही है, सही बात है। हमारे जो मुस्लिम मुआशरा है, या अनफॉर्चुनेटली जितने भी मज़ाहिब हैं उनकी मेजोरिटी के साथ यही बुरा हाल है कि ना वो अपनी किताबों से जुड़े हैं, ना वो अपने अल्लाह से जुड़े हैं, ना उनके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए कोई क्राइटेरिया मौजूद है। हमारे उलमा जाहिल हो चुके हुए हैं, तो जाहिलों का क्या हाल होगा मादरत के साथ। नहीं फिर ये भी चीज आ गई हुई है कि हमारे लोग जो हैं वो रवायत और जो कदामत परस्ती है उसके पीछे ऑर्थोडॉक्स जिन बन गया हुआ है। अब यही वजह है कि मैं इस वक्त आपके सामने इस तरह बैठा हुआ हूं। नहीं सही बात, मैं समझ रहा था, मैं बिल्कुल। अच्छा, अब मैं वो बंदा हूं, मैं इसके इल्हाद को रद्द करने के लिए बैठा हूं। अब लोग मुझे मुल्हिद कह रहे होते हैं। ऐसे लेवल पर जब इस लेवल तक बात चली जाएगी ना, तो उस वक्त क्या होता है, ये तो अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत है, मेरा कोई कमाल नहीं है। वगरना ये है कि हम जिस तरीके से पुश किया जा रहा था, मेरे जैसा बंदा भी कहता कि चलो जी निकलो इस चीज़ों तो बाहर निकलो, इससे बाहर निकल जाओ। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमें बुनियादी तौर पर इस्लाम का जो नक्शा पेश किया गया है वो अट्रैक्टिव नहीं है, मादरत के साथ वो अट्रैक्टिव नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो अप टू डेट नहीं है, वो आपके टाइम के साथ सेट नहीं बैठता, क्योंकि वो नक्शा ही वो पेश किया गया। असल में हमको बचपन से हमको ना वो जो अकायद का इल्म सिखाना चाहिए ना, और बच्चों को थोड़ा सा ज़हनी तौर पर मजबूत करना चाहिए, वो चीज़ हम नहीं करते। हम कुरान शरीफ पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद दीन की भी बेसिक नॉलेज भी नहीं होती है, जिसकी वजह से अब ये जब इनकी तरफ जाता है तो अपनी बेसिक नॉलेज तो उसे खुद नहीं मालूम होती है कि क्या है। फिर वो उसको जब सुनता है तो फिर उसी को सुनता ही चला जाता है, फिर कहता है कि नहीं। और फिर एक इंसान की फितरत भी है कि वो थोड़ा सा आजादाना जिंदगी गुजारना चाहता है, और फिर वो जब ये सोचता है कि हाँ ये यार छोड़ो, ला मजहब के हुदूद में कौन आएगा, फिर उस तरीके से वो निकल जाता है। शैतान तो वैसे ही खुला हुआ दुश्मन है मुसलमानों का। तो इस बुनियाद पर भी लोग बड़े को ना, मैं आपको बताता हूँ, किसी भी बंदे, ये आसान काम नहीं है, मैं आपको बताऊं, मुल्हिद होना आसान काम नहीं है, वो मुश्किल काम है, ठीक है, बड़ा मुश्किल काम है जी। मगर एक वक्त आता है कि जब आप, जिस तरह यहां शैतान आपको उचकता है, वहां आपको एथिज्म में भी शैतान उचक लेता है। आप चल मुखलिस नियत के साथ रहे होते हो। कितने ही मुल्हिदों को मैंने देखा है कि जो बुरी नीयत, अच्छी नीयत के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ मुल्हिद हुए हैं, बाद में अल्लाह ने जो है ना वो जब वो निकल गए उस दायरे से, उनको उचक के ले गया शैतान। नीयत नेक थी कि भाई मुझे नहीं समझ आ रही। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक किताब लिखी है इब्ने जौजी ने, इब्ने जौजी, इमाम इब्ने जौजी 6वीं सदी के इमाम है, उन्होंने किताब लिखी है तलबीसे इबलीस, ठीक। तलबीसे इबलीस पढ़ने लायक किताब है, उर्दू में छपी है शैताने हथकंडे के नाम से, अरबी में है तलबीसे इबलीस। अच्छा, ये मिल जाएगा गूगल पे, मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। मैं एक अनकरीब प्रोग्राम करने लगा हूं, जो प्रोग्राम है एक खतरनाक मुगालता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्सेस उलमा, उसके अंदर मैं उसको कुछ हवाले भी दूंगा। तलबीसे इबलीस जो है ना, ये किताब पढ़ने वाली है। इसमें बताया है कि किस तरीके से शैतान हर इंसान को कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूजेस दिए हुए है जिससे वो मुतमईन है, और इसका इशारा कुरान में भी किया है। कुरान में अल्लाह कहते हैं कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर ग्रोह जो है ना वो मुतमईन बैठा हुआ है कि वो ठीक कर रहा है, ये याद रखें। एथियस्ट पूरी ईमानदारी के साथ एथियस्ट है,
मुस्लिम पूरी ईमानदारी के साथ मुस्लिम है, ईसाई पूरी ईमानदारी के साथ ईसाई है, अलगर्ज इस तरह के जितने यहूदी हिंदू सब पूरी ईमानदारी के साथ वो हैं जो वो हैं। फर्क सिर्फ वहां पड़ता है कि जब आप रिव्यू करना शुरू करते हैं, रीओपन करना शुरू करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं उन आइडियाज को जो आपको बचपन से मिले हैं। ठीक है, अब हर बंदा जो है वो चिमटा हुआ है अपनी अपनी चीज के साथ, वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, निकलने के लिए तैयार नहीं है। एथिस्ट के साथ मसला ये होता है कि एथिस्ट जब इस तरह का मुआशरा देखते हैं ना तो उनको चाहिए होती है जस्टिफिकेशन। याद रखें, किसी गुनाहगार को भी गुनाह करने के लिए जस्टिफिकेशन चाहिए होती है। चोर जब चोरी कर रहा होता है ना तो वो कहता है पहले अपने आप को कि मुझे जरूरत है इसलिए मैं चोरी कर रहा हूं। सही है, ठीक है। मैं एक दफा, अब मांगने वाले हैं प्रोफेशनल बेगर्स जो मांगने वाले होते हैं, मैं एक दफा दोस्तों के साथ बैठा था मार्केट के अंदर को आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए बैठे, तो एक मांगने वाली आई, वो 35-36 साल की औरत होगी और बिल्कुल हट्टी कट्टी। अच्छा, वो आई हमारे पास, तो मैंने देखा, मेरी आदत है जब कोई इस तरह का मांगने वाला है ना तो मैं उसको कहता हूँ कि यार आप ये काम ना करें, आप मेहनत कर लें। सही बात। अजीब लगता है कि जवान बंदे को पैसे देते हुए भी दुख होता है कि यार कहीं हम ना गुनाहगार हो जाए, सेहतमंद। सही बात। अच्छा, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि आप ना ऐसे करें, आपको कोई काम चाहिए तो मैं काम लगवा देता हूँ, आप मांगा ना करें, आप तो सेहतमंद है। तो आगे से मुझे कहती है तो ये मैं क्या कर रही हूँ, ये भी तो काम ही है। मैं लाजवाब हो गया। मुझे कहती है तू उठना, तू मांग के दिखा 1 घंटा, मैं तुझे मान जाऊंगी, मैं ये काम कर रही हूं। अब ये उसकी जस्टिफिकेशन है। मकसद कहने का ये है कि दुनिया के अंदर जो काम भी अच्छा या बुरा हो रहा है उसकी जस्टिफिकेशन मौजूद है उस बंदे के पास जी, मौजूद है, चाहे वो ठीक है या गलत है, वो ठीक है गलत है। इसी तरीके से मुल्हिदीन जो है, ये जब मुल्हिद होते हैं ना, इनके पीछे जस्टिफिकेशन पता क्या बहाना करेंगे। कोई बहाना करेगा यार मौलवी को देखो, कोई बहाना करेगा यार जो है ना ये मुस्लिम दुनिया को देखो, कोई परवाह ही नहीं है। अगर पाकिस्तानी होगा तो वो वेस्ट में चला जाएगा, वो कहेगा ना मुसलमानों की इज्जत है, ना पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, इस मजहब ने दिया क्या है, इस्लाम के नाम पर ये लोगों को कत्ल कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। अब वो चीजें प्लस होती जाती हैं। स्टार्ट उसकी शुरू होती है अपने पर्सनल ग्रज से, वो जस्टिफिकेशन देता है पहले। यानी एक बड़ा चोर पहले छोटे से अंडे की चोरी करता है, फिर वो किसी का मोबाइल उठाता है, फिर वो लैपटॉप उठाता है, फिर वो मोटरसाइकिल उठाता है, फिर वो गाड़ी उठाता है, फिर वो मोदी साहब की तरह या हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की तरह खजाना चुराता है। सही बात है, सही कहने हैं। तो ऐसा ऐसा चोर बनता है। तो एथिस्ट जो स्टार्ट होता है वो इस तरह ग्रज स्टार्ट होता है, बॉयल अप चीजें होती हैं, पकना शुरू होती हैं। वो कहेगा अच्छा ये मुसलमान ठीक नहीं, मुसलमान दुनिया में मार खा रहे हैं, चलते 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 वो आगे इस तरीके से वो इल्हाद की शक्ल इख्तियार कर देता है। ये है सारी जी, उसको जड़ से पकड़ना है। जड़ से ये पकड़ना है कि ये तहरीक शुरू हो जाए कि अपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक करो, इस्लाम कुरान और हदीस से समझा जाएगा और उस तरीके से समझा जाएगा जिस तरीके से उसका सियाक बताता है। पिक एंड चूज नहीं, पिक एंड चूज नहीं। यानी आज का अगर मिसाल के तौर पर, मैंने एक दफा बात की थी, प्रोग्राम दूसरे चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, हारिस सुल्तान ने कहा था कि जी मुस्लिम अपोलोजेटिक्स। मैंने कहा किसी मुसलमान को अपोलोजेटिक होने की जरूरत नहीं। एवरी मुस्लिम शुड बी नॉन अपोलोजेटिक। उसकी वजह यह है कि अगर अपने दीन को दिफा करने का नाम अपोलॉजी है, अपोलोजेटिक है, तो मुल्हिदीन भी अपोलोजेटिक है, साइंटिस्ट भी अपोलोजेटिक है। उसकी वजह यह है कि अगर मैं 60 ईयर्स पहले की, 100 ईयर्स पहले की साइंस आज के इन मुल्हिदों के सामने रख दूं और कहूं देखो तुम्हारे बाप दादा कितने बेवकूफ थे, तो क्या ये जस्टिफाई करेंगे उसको? नहीं करेंगे। अब ये ले आते 1400 साल पहले के हालात को हमारे सामने और कहते हैं ये चीजें करो, जबकि वो चीजें ऑप्शनल है, फर्ज नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह की बातें, मगर ये है कि हम उनको ऑन करते हैं और हम उनको डिफेंड भी करते हैं। हाँ, ये सही, उनको डिफेंड भी करते हैं। तो ये है दूसरी बड़ी वजह जो है वो ये है कि हम मुसलमान आपस में मुत्तफिक नहीं हैं। हम जब तक याद रखें, कोई किसी की इज्जत नहीं करता जब तक वो अपनी इज्जत नहीं करता। आप मुझे बताएं, एक बच्चा बड़ा होता है, वो बरेलवी मिसाल के तौर पर वो बरेलवी खानदान में बड़ा होता है। जी मैं सही बोले। उसको बताया जाता है कि ये देवबंदी, इनके पीछे नमाज नहीं पढ़नी, वहाबियों के पीछे नहीं पढ़नी, शियों के पीछे नहीं पढ़नी। वो कहता है अच्छा इनके पीछे क्यों नहीं पढ़नी? गया इनकी नहीं होती जी, ना इनकी होती है ना हमारी होती है। इसी तरीके से देवबंदियों सब फिरकों के अंदर एक एक बच्चा पैदा कर लें जो इस हालात के अंदर ऐसे बड़े हो रहे हैं। एक बरेलवी के अंदर हो रहा है, एक वहाबी के अंदर हो रहा है, एक शिया के अंदर हो रहा है और एक देवबंदी के अंदर हो रहा है। वो ऐसे सारे जब बच्चे बड़े होकर मुआशरे के अंदर आते हैं ना, आमने सामने, वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। ठीक है, जब ये नफरत अपने उरूज पर पहुंचती है और जाकर पता चलता है कि उसने भी झूठ बोला था, इसने भी झूठ बोला था, वो इस्लाम से नफरत पैदा हो जाती है।
बंदा कहता है ये सारे झूठे हैं, ये सिस्टम ही सारा खराब है। तो फिरका वारियत बहुत बड़ा सबब है इल्हाद फैलने का, ये याद रखे, बहुत बड़ा सबब, हमें नहीं पता चलता, बहुत बड़ा सबब। वो इसी का फायदा उठा ही रहे हैं, वो असल में इसी का फायदा उठा रहे हैं ना। याद रखें, मेरी बात सुने, आप चोर कभी भी उस घर के अंदर घुसेगा जिसकी कुंडी खुलेगी या जिसकी कुंडी खोल सकता है, जहां चोर रास्ता हो। एक घर होता है उसके अंदर चोर रास्ता होता है, ठीक है, उसको चोर रास्ता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चोर के लिए होता है। जब आप अपने मुआशरों में चोर रास्ता छोड़ेंगे तो वो लोग घुसेंगे। हमारे मुसलमानों को बहुत से मकामात के ऊपर एक दूसरे की इस्लाह करने की जरूरत है, अखलाकी इस्लाह करने की, शरई इस्लाह करने की, बहुत ज्यादा दोबारा कुरान और सुन्नत के साथ जोड़ने की जरूरत है कि जुड़ो। अच्छा, फिर हमारे यहाँ उलमा को एक अकीदत दे दी गई है, मुझे कोई शक नहीं, उनका अदब और एहतराम है, वो वरासत है, मगर जब तक ये फर्क नहीं खींचा जाएगा कि नबी और हैं और उलमा और हैं, नबी जहां आ जाएंगे वहां उलमा की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जब तक ये नहीं होगा तो एक आम बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस, मुसलमान के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा। आप मुझे बताएं, एक आम मुसलमान के अंदर जो है ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं पैदा होता। वो हमेशा आंखें बंद करके उलमा से पूछ पूछ के वो उसको स्याह बताएं, सफेद बताएं, गलत बताएं, सही बताएं, वो मानता चला जाता है। और जब उसको पता चलता है कि ये बात तो ठीक ही नहीं है, झूठ है, तो वो सिर्फ आलम दीन से ईमान नहीं उठता, उसका इस्लाम से भी उठ जाता है। सही बात। और ये बताया था कि यही है जो है हमारे इंडिया में तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि अब तो जो एथिस्ट है यूट्यूब पे वो अक्सर हिंदू ही है, मैं बहुत जानता हूँ। तो असल में ये कि अब उनका सवाल सुन के लोग जो थोड़े नॉलेज पढ़े लिखे हैं, आलिम दीन है, उनके पास जाते हैं, तो भाई एक बार इत्तेफाकन उनके पास जवाब नहीं होता है तो वो ऐसे उल्टी सीधे जवाब दे देते हैं। और होता क्या है कि अगले इंसान के ऊपर उसका बड़ा फर्क होता है यार, कि फिर वो मुतमईन नहीं होता है, और फिर शैतान तो उसके साथ और लगा रहता है कि देखो वो चीज नहीं, और फिर उसके अंदर से ये जो छोटा सा एक जख्म है, एक नासूर की तरह बनता है। तो इसमें उलमाए किराम का भी बहुत ज्यादा, ये अगर इस पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो इसकी वजह से बहुत लोग चले जा रहे हैं। तो ये हमारे हाँ, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा मैं इस चीज को बहुत अच्छे से फील कर रहा हूँ। हम 4-5 लड़के हैं जिसको हम लोग थोड़ा सा इलाहाद पे थोड़ा काम करते हैं, और यही कोशिश करते हैं कि मतलब थोड़ा सा बचे। और इसलिए थोड़ा मैं भी, इसलिए आपका एक बार पहले भी क्वेश्चन ये ऐसी सेशन देखा था, लेकिन उसमें मैं बिजी था, तो मैंने कहा कि अगले बार इंशाअल्लाह ताला मैं जरूर इसमें शामिल होऊंगा। हमेशा आए, अपनी राय रखें, अपना मौकफ रखें, आप कोई बात करना चाहते हैं वो भी रखें। मैं एक बात करता हूँ, ये बहुत खतरनाक और अलार्मिंग है। उसकी वजह यह है कि जब मुसलमानों की खिलाफत और मुसलमानों को सियासी जवाल और इनकी पसपाई हुई थी, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि उलमा इररेलेवेंट और अननेसेसरी चीजों के अंदर उलझे हुए थे, गैर जरूरी और पुरानी चीजों के अंदर। यही इब्न तैमिया ने जिक्र किया है उनकी सीरत के, यानी उनकी जो किताबें हैं उनके अंदर ये बार बार जगह मिलती है कि जनाब हमारे उलमा जो है वो तातारियों के आगे इसलिए झुके हैं क्योंकि वो फिक्ही मुशगाफियों के अंदर फंसे हुए थे। ठीक है, सही बात। एक किताब का मैं जिक्र करता हूँ, गो के उस किताब से बड़ी जगह पर इख्तलाफ मैंने किया है पढ़ते हुए, और होता है। आपके इंडिया के एक बड़े स्कॉलर हैं, लोग बड़ा उन पर तनकीद करते हैं, मैंने भी तनकीद किया, मगर उस बंदे ने नब्ज पकड़ी है। मैं इसीलिए कहता हूँ हर बंदे के अंदर बुरी चीज नहीं होती, अच्छी चीज नहीं होती। उस बंदे ने ना उम्मत की नब्ज पकड़ी है, नब्ज बहुत सी जगह पर। उसका नाम है राशिद शाज, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं राशिद शाज। ठीक है, राशिद शाज जी। उन्होंने किताब लिखी है इदराके ज़वाले उम्मत, 2 जिल्दों के अंदर है, इदराके ज़वाले उम्मत। उस किताब के अंदर ना उन्होंने बड़ी जगह नक्शा खींचा बड़े अच्छे तरीके से। मैं हर एक को ये किताब रिकमेंड नहीं करूंगा, वो बंदा पढ़े जिसके पास बेसिक कुरान और हदीस का सही नॉलेज है जी। तो वो डावाडोल हो जाएगा, क्योंकि मैंने जब वो पढ़ी है वो बहुत जगह पर आपको झंझोड़ती है किताब। जी हाँ, सही समझ रहे हैं। वो बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस है, बहुत क्रिटिकल एनालिसिस है। अच्छा, अब ये चीज है, क्या मैं कहने लगा था, हाँ, उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया है कि सियासी पसपाई के पीछे हमारी फिक्ही मुशगाफियों का ताल्लुक था। एक हम सूफियत में घुस गए थे, हमने खुद अपने ऊपर फखर को और गुलामी को तारी कर लिया था, अल्लाहू अपने ऊपर तारी कर लिया। जब उन्होंने आके हमें डंडा दिया, हमने आके सुकून से कहा जी दुनिया तो हमें चाहिए नहीं, हमें आखिरत ही चाहिए, बस आखिरत ही चाहिए, और अपना सियासत से इस्तेकामत। ये चीज तो खैर इंडिया में आज तक है। आज मुसलमानों की क्या, खैर हम जहाँ पे रहते हैं, बनारस का नाम सुना होगा, ज्ञान वापी मस्जिद, बाबरी मस्जिद के बाद अब उसी का इन लोग टारगेट कर रहे हैं, तो ये चीज खैर सही है।
अच्छा, तो अब उसके लिए क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हमारे उलमा आज तक बहुत कम हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ रही है। मैं मजे की बात बताऊं, मैं खुश हूं कि आहिस्ता आहिस्ता अब इनको, मगर ये बहुत देर से समझते हैं, तब तक दुश्मन देर अपना समझ काम कर चुका होता है। कर चुका था, यही प्रॉब्लम है, ये इस चीज को मैं भी समझता हूँ। स्पीकर आया ये उससे भागते रहे, कैमरा आया ये उससे भागते रहे, सोशल मीडिया आया ये उससे भागते रहे, अब ये सारे आगे बैठ गए हैं। और तब जब सब कुफर और दज्जाल अपना काम कर गया, अब देखें, अब इतना ये गंद बात तो मचा हुआ है हाँ, कि हम मेरे जैसे बंदे की आवाज कोई सुन ही नहीं रहा। सुन ही नहीं रहा है। मैं बड़ा ताज्जुब में हूँ। मैं देख रहा था कि ये बताइए, इतनी मतलब बेहतरीन बात है, टॉपिक भी है, और माशाल्लाह आपके पास काफी नॉलेज मुताला भी है। तो इस चीज को, खैर इस चीज के इतने सुनने वाले कम है। मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। पहले सबको इस चीज पे पहले ध्यान, और ये चीज पे अगर नहीं ध्यान दिया गया तो ये बहुत बड़ा फितना बनकर उभरेगा, और तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह इसको टैकल करेंगे। अच्छा, कुछ लोग हैं वो, उन्होंने एक नया बहाना ढूंढा हुआ है, ठीक है, मैं उसको बहाना, हालांकि वो उसूली तौर पर ठीक है, मगर मैं उसको अब बहाना इसलिए कह रहा हूं कि ये एक्सक्यूज अब ना करें। चाहे ये मेरी बात के मुल्हिद देख रहे होंगे, वो इसमें से ड्रामे इधर उधर करेंगे, मगर मैंने ये बात कहनी है, लाइव ही कहनी है, और ताकि लोगों तक, हमारे दोस्तों के जहन क्लियर हो। इसमें कोई शक नहीं है कि इल्हाद के साथ हमारा उसूली मसला यही है कि वो खालिक का इनकार करते हैं, हम खालिक का इकरार करते हैं। जब तक ये मसला क्लियर नहीं होगा, दूसरे मसले क्लियर नहीं होंगे, ये बात ठीक है। मगर जब दुश्मन आप पर आकर हमले कर रहा हो, उस वक्त आप ये नहीं सोचते कि ये मेरे मुंह पर थप्पड़ मारेगा तो तब मैं लड़ूंगा, टांगों पे मार ले, पेट पे मार ले, ठीक है। तो ये बहाना ना करें, डिफेंड करना है तो ऊपर से लेकर नीचे तक बॉडी को डिफेंड करना है, ये नहीं कि मुंह पे थप्पड़ आएगा तो तब खाएंगे, ये बोलेंगे। तो ये इससे पीछे हट जाएं। और ये बड़े बड़े स्कॉलर्स ये बात अभी कर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों एक बंदे की बात सुनी है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की मैंने बात सुनी, हालांकि मैं कितनी दफा मैं पर्सनली उनके साथ मिला, मैंने उनके सामने ये बात रखने की कोशिश की, इंजीनियर साहब के साथ। नहीं, सही है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि ठीक है, सो इख्तिलाफ सही, मगर आपकी आवाज अब बड़ी दूर तक जा रही है, इस चीज को करें कि इल्हाद के ऊपर डिटेल्ड स्टेटमेंट के तौर पर लें। वो कहते हैं मैंने थोड़ा सा काम करना था कर लिया, मैंने मुकदमा जो है ना हाईलाइट कर दी, पर ठीक है, फिर आपने अगर कर दिया तो इसको चैलेंज के तौर पर ले ही नहीं रहे, मिशन के तौर पर। फर्रा मिनल मातारी व कामा तहतल मीजाब, अरबी का एक ज़रबल मिसल है कि आप बारिश से भागकर आबशार के नीचे जा रहे हैं, आपको बताएं, ठीक है। तो आपने बारिश से बचना है तो किसी छांव वाली जगह पर पहुंचना है, उसके लिए आपको हर मिशन को डील करना पड़ेगा, इसलिए बड़ा जरूरी है।